with basics of cloud computing. So we are starting with like 10 to 15 years back, every company was running traditional data centers. 10 से 15 साल पहले हर कंपनी के पास जो डेटा सेंटर थे वो थे ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स. You know what a data center is? Every company will be running a data center. In the data centers, the first thing we will be having is that we will be having a physical hardware. जो physical hardware है IBM का हो सकता है, HP का हो सकता है, Dell का हो सकता है. On top of the hardware, we were installing an operating system. Operating system could be Linux, operating system could be Windows. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि लिनक्स पे आप प्रैक्टिकल कराएंगे या आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रैक्टिकल कराएंगे. ज्यादातर स्टूडेंट्स जो 70-80% स्टूडेंट्स जो एक क्लास के लिए आते हैं उनको विंडोज पे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, राइट. बट वी आर नॉट हैविंग आवर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लिनक्स और विंडोज. इसमें से हमारा इंक्लिनेशन किसी की तरफ नहीं है. हमारा सिर्फ पॉइंट आपको प्रैक्टिकल दिखाना है. आई कैन शो यू प्रैक्टिकल ऑन विंडोज as well as Linux. But as a solution architect, you cannot say कि मुझे Linux नहीं आता, मुझे Windows नहीं आता. You need to know both, right? So operating system, and then on top of it, you will be deploying an application. ये application आपकी email server हो सकता है, ये application आपका website हो सकती है, यानी web server हो सकता है, right? So as a solution architect or as a server administrator, my job is to maintain high availability of the application. मुझे इस application है इसकी high availability maintain करनी है. तो हम क्या करते थे traditional data centers में अभी स्टार्ट आ रही. So we were taking another hardware with the same configuration. We will be taking another hardware with the same configuration. We will be installing same OS on top of it, and then we will be deploying same application, right? Now, why we are doing this? Because we want to create an environment of high availability. So as a solution architect, my job is to create a highly available infrastructure. Highly available means कि एक पहला अगर fail हो गया, so second one will take over. And then we were doing clustering. उसके बाद हम जो यहाँ पे कर रहे थे, that was a clustering. तो अगर एक hardware down हो जाता है, so another one will take over. Your application will not be having a downtime, right? So this we were doing 10 to 15 years back in the traditional data centers. I'll also share the slide with you. Different. So you can even see the same concept here. So 10 to 15 years back, every company was having traditional data centers. In the traditional data centers, we have started keeping one hardware for every hardware, right? And then we have started creating a cluster. Why we were creating this cluster? Because in this particular case, if one of the hardware will go down, another one will take over and your application will not be having a downtime. But in this scenario, we were having lot of challenges. और जो पहला चैलेंज था वो ये था कि इस केस में हम रिसोर्सेज का जो effective utilization है वो नहीं कर पाते थे. We were not able to do effective utilization of resources. Let's suppose first hardware never failed. पहले वाला हार्डवेयर फेल ही नहीं हुआ तो दूसरा हार्डवेयर तो completely unutilized रह गया. सेकेंड इज हाई कॉस्ट. अगर आपको हर हार्डवेयर के लिए दूसरा हार्डवेयर रखना होगा तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट डबल हो गई. थर्ड, मैनेजेबिलिटी वो स्टाफ. यानी अगर आपको एक डेटा सेंटर बनाना है जिसके अंदर आपको 1000 हार्डवेयर रखने हैं तो इस सिनेरियो में तो 1000 के लिए 2000 रखने पड़ेंगे. यू नीड मोर स्पेस, मोर कूलिंग, मोर पावर, मोर इलेक्ट्रिसिटी, मोर मैन पावर टू मैनेज दीज रिसोर्सेज, राइट. सो ए स्मॉल फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू. तो आप सबको आवाज आ रही है या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दीजिए आप लोग. एनी चैलेंज यू आर फेसिंग? No, sir. No, sir, clear. Perfect. All good, sir.
So what we are doing is we are talking about basics of cloud computing. We have started with 10 to 15 years back. Every company was running traditional data centers. Still few companies are running traditional data centers. Traditional data center mein, the first thing is you need to purchase the hardware. On top of the hardware, you'll be having OS, then application. What we are doing is we are keeping another hardware for the failover of the first hardware, identical. And if the first hardware will not fail, we were having a lot of challenges with the traditional data centers. And these challenges are system resources were underutilized. It was difficult to manage. We had high cost of maintenance. And this is very interesting that sometimes electricity bill of the data center was more than the cost of the infrastructure. So see, infrastructure is always having a depreciation cost attached with it. अगर आप आज कोई हार्डवेयर खरीदते हैं तो 5 साल बाद उसकी जो कॉस्ट है वो नेग्लिजिबल होती है। क्यों? क्योंकि एवरी ईयर इट इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कि हम जो उसकी हार्डवेयर की कॉस्ट है 20% के हिसाब से कम करते रहते हैं। एवरी ईयर इट विल रिड्यूस एट ए रेट ऑफ 20%, राइट? दैट इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. So, but electricity bill and all other expenses like salaries, they will keep on increasing. So this is also a challenge that the infrastructure cost was also reducing, right? So electricity bill of the data center was more than the cost of the infrastructure. And then came the concept of virtualization. So what virtualization is, creating, its simplest definition is creating multiple machines within a machine by sharing the hardware resources is known as virtualization. तो आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने ये सॉफ्टवेयर यूज किया हो सकता है कुछ लोगों ने यूज ना किया हो. आई एम शोइंग यू दिस सॉफ्टवेयर. द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर इज VMware वर्कस्टेशन. हो सकता है इसकी जगह आपने Oracle का ओपन बॉक्स वर्चुअल बॉक्स यूज किया हो. तो आप देख सकते हैं ये जो सॉफ्टवेयर है ये मैंने अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किया है. ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो VMware का है. इसका नाम है VMware वर्कस्टेशन. और इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं मैंने विंडोज के अंदर रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है. तो अगर मैं इसको पावर ऑन कर देता हूं तो आप देखिए यहाँ पे इसने मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मेरे हार्डवेयर में से 4 वर्चुअल सीपीयूज और 3 GB रैम इसने ली हुई है. यानी क्रिएटिंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स विद इन अ मशीन by sharing the hardware resources is known as virtualization. तो ये Red Hat Linux ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और आप इसके अंदर अपना जो भी टास्क हैं वो भी कर सकते हैं, राइट? दिस इज वर्चुअलाइजेशन. So when we were having these challenges, 3 companies, they have started working on the concept of virtualization. In तीनों companies ने मिलके काम करना start किया on the concept of virtualization. The first of them was Microsoft. Another one is VMware, and the third is Zen. So in these 3 companies, they have started working on the concept of virtualization. And these 3 companies, they came up with a software, and the name of the software is Hypervisor. Now, Hypervisor is the software which initiates or starts virtualization. तो Hypervisor वो software है जो virtualization को start करता है, या बोल सकते हैं जो virtualization को initiate करता है, right? तो जैसे ही Hypervisor market में आ गया, हर कंपनी ने अपने अपने नाम से अपने अपने Hypervisors बना लिए. Microsoft ने जो बनाया उसका नाम है Hyper-V. VMware ने जो यूज करना स्टार्ट किया, they have started using ESX. अभी वो यूज कर रहे हैं ESXi, which is the upgraded version. Citrix ने यूज किया Zen, and if we will talk about Red Hat started using Zen. अभी वो यूज कर रहे हैं KVM. तो Red Hat ने यूज करना स्टार्ट किया Zen. Right now they are using KVM. So आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कौन सा हाइपरवाइजर यूज कर रही है. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको जब भी कोई एक वर्चुअल मशीन ऑन प्रमाइसिस डेटा सेंटर से क्लाउड में माइग्रेट करनी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि ऑन प्रमाइसिस डेटा सेंटर में कौन सा हाइपरवाइजर चल रहा है. You will see this concept in many scenarios, right? So first thing is कि आपको याद होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कौन सा हाइपरवाइजर यूज कर रही है. Now,
Hypervisor की definition I told you, it is a software which initiates or starts virtualization, right? It is a software which initiates or starts virtualization. कैसे initiate करता है वो भी हम देखेंगे practically. Now, आज के टाइम में आप ये जो terms हैं SDN is known as software defined network, SDDC is known as software defined data center. ये terms आप काफी सुनते हैं. From where these terms are coming, which software we are talking about? Actually, we are talking about the software which is hypervisor only. तो हम यहाँ पे hypervisor की ही बात कर रहे हैं, right? So hypervisor will give you the capability to create multiple virtual machines on top of it by sharing the hardware resources. So the concept will remain the same. तो देखिए hypervisor कैसे काम करेगा? Any doubts? All okay? Yes. So the first thing you need to remember is that which company is using which hypervisor. Now, once the hypervisor technology was there, earlier what we were doing is on top of the hardware, we were installing a operating system. Operating system is a big software, 2 GB, 4 GB, depending upon which operating system you're using. But on top of it, we have started installing this hypervisor. So hypervisor is a very, very small software, somewhere about 350 MB. 350 MB का ये छोटा सा software है, which will give you the capability to create multiple virtual machines on top of it by sharing the hardware resources. मान लीजिए मेरा जो hardware है इसके अंदर 64 GB RAM है और मैंने इसके ऊपर 4 virtual machines बना दी और ये जो 4 मैंने virtual machines बनाई इन चारों को मैंने I have assigned 8 GB RAM dedicatedly to these virtual machines. While creating these virtual machines, मैंने इन सभी को 8 GB RAM dedicatedly assign कर दी. तो कितनी 32 GB यूज हो गई, कितनी बच गई? Still we are left with 32 GB RAM, right? So what we can do is we can use this 32 GB RAM as a resource pool. Resource pool means shared resource. यानी इसमें से अगर किसी भी मशीन को additional resources की जरूरत पड़ती है तो वो इस 32 GB के रिसोर्स पूल में से ले लेंगे. तो आप देख सकते हैं clearly that with the help of the hypervisor we have started doing effective utilization of resources in comparison to the traditional data center. Hypervisor की help से traditional data center के comparison में तो effective utilization हमने start कर दिया, right? Now, So you can see after hypervisor, the concept changed. Every hardware was running a hypervisor. Every hardware was running a hypervisor. And with the help of the hypervisor, we have started creating multiple virtual machines on top of it. Hypervisor is a Microsoft application used for virtualization. कहाँ लिखा है कि Microsoft की application है? आप जो Hyper-V Microsoft की है, yes, correct. So hypervisor जो है वो एक generalized term है. जैसे मैंने बोला मेरे पास एक कार है, तो that is a generalized term. Generalized term means मैंने general बोला कि कार है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि मारुति है या हुंडई है या कौन सी है, right? लेकिन अगर मैं बोलता हूँ Hyper-V तो वो Microsoft का है. Hyper-V Microsoft का है, right? Hypervisor is a generalized term, right? So जैसे ही आपके पास हाइपरवाइजर आ गया तो हर कंपनी ने बनाने शुरू कर दिए वर्चुअल डेटा सेंटर्स इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स. एवरी कंपनी दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग वर्चुअल डेटा सेंटर्स इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स. यानी अब हर हार्डवेयर के ऊपर आपके पास होंगे हाइपरवाइजर एंड हाइपरवाइजर के ऊपर यू विल बी रनिंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स. लेकिन पहले मान लीजिए मैं ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट था, अब मैं क्लाउड वर्चुअल डेटा सेंटर में मैं एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेम ही रहेगी, यानी मुझे हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करनी है. तो ये भी वर्चुअल डेटा सेंटर के अंदर एक क्लस्टर ही है. दिस इज a cluster. What do you mean by cluster? Cluster means group of 2 or more than 2 hardwares is known as cluster. 2 या 2 से ज्यादा हार्डवेयर के ग्रुप को ही हम क्लस्टर बोलते हैं, राइट? सो मेरा कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा. मुझे यहाँ पे भी अपनी एप्लीकेशंस की हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करनी है. ट्रेडिशनल में भी मैं हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन कर रहा था.
तो मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ हार्डवेयर्स इन दिस क्लस्टर इज 1000, 1000 हार्डवेयर है मेरे पास इस क्लस्टर में। पहले मैं क्या कर रहा था, 1000 के लिए 1000 ही हार्डवेयर रख रहा था फेल ओवर के लिए, बट दिस टाइम मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि 1000 में से 10 हार्डवेयर फेल हो सकते हैं एट ए टाइम, एक ही बारी में 10 हार्डवेयर फेल हो सकते हैं। सो आई एम रिजर्विंग ए एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 10 हार्डवेयर, मैं 10 हार्डवेयर की एडिशनल कैपेसिटी जो है यहाँ पे रिजर्व करके रख रहा हूँ, यानी total number of hardwares which I am going to keep into the cluster is 1010, 1010 हार्डवेयर टोटल में रखूंगा। इसमें अगर मेरा एक हार्डवेयर फेल हो जाता है तो इसके ऊपर ये जो वीएम चल रही हैं ये जाके उस हार्डवेयर पे स्टार्ट हो जाएंगी जहां पे की कैपेसिटी ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो हमने 10 हार्डवेयर की कैपेसिटी ऑलरेडी यहाँ पे रिजर्व करके रखी है, वी हैव ऑलरेडी रिजर्व्ड ए कैपेसिटी ऑफ 10 हार्डवेयर, राइट। So the concept of reserving the capacity for the failover is known as HA. HA is known as high availability. Concept of reserving the capacity for the failover is known as HA, high availability. तो आप देख सकते हैं पहले आप 1000 के लिए 1000 रख रहे थे, बट अब 1000 के लिए आप सिर्फ 10 रख रहे हैं। तो आपने यहाँ पे रिसोर्सेज का effective utilization करना स्टार्ट कर दिया है in comparison to the traditional data center. Traditional के comparison में तो आप effective utilization कर रहे हैं। Second concept here is known as DRS. DRS is known as distributed resource scheduler. सो ये जो HA है, DRS है, और अब अभी एक और पढ़ेंगे FT which is known as fault tolerance। ये सब की सब जो टर्म्स हैं वो वर्चुअल डेटा सेंटर्स में यूज होती हैं, राइट। बट इफ यू नो द बैकग्राउंड it will be very easy for you to understand the concept in the cloud. So DRS क्या करता है, DRS is distributed resource scheduler। तो मान लीजिए आपकी एक वर्चुअल मशीन ने ज्यादातर रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लिए जो इस हार्डवेयर के पास थे, it needs more resources now. In that case what will happen is this virtual machine can be migrated from this very hardware to any other hardware जहां पे कि ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ये ऑटोमेटिकली होगा बैकएंड में, जो कि DRS देखेगा, DRS will automatically handle it, right? इसी तरह से FT is known as fault tolerance. FT is also known as super HA, super high availability. मान लीजिए आपकी एक वर्चुअल मशीन के ऊपर एक एप्लीकेशन चल रही है and this application is being accessed by 5000 users around the world. 5000 users इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं right now. You cannot afford its downtime. You cannot afford that it will go down for even a single second. So in that particular case, what you will be doing is you will be creating another fault tolerant machine from this machine. इसके ऊपर भी same application चल रही है। So किसी भी reason से अगर request यहाँ पे fulfill नहीं हो पाती तो request यहाँ से fulfill हो जाएगी। So FT is also known as super HA, super high availability. HA के अंदर you will be having a little downtime. जो migration में जो time लगेगा वो downtime होगा। If anyone is having any doubt, you can ask me. All okay? Perfect. Yes. Now, Yes, sir. so ये सब है वर्चुअल डेटा सेंटर्स में। तो आप देख सकते हैं वर्चुअल डेटा सेंटर्स में हमने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया रिसोर्सेज का इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स। ट्रेडिशनल के डेटा सेंटर के कंपैरिजन में तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है। सर ये जो थाउजेंड्स यूज हो रहे हैं, ये जो हमारा हार्डवेयर होगा उसके अगेंस्ट में हम 1000 उसमें से कोई पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा ना, वर्चुअलाइजेशन क्रिएट कर देते हैं। आपने बताया था कि 64 GB रैम और 4 वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की, 8 GB हमने रैम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी, असाइन कर दी। तो जो हमारी वर्चुअलाइजेशन मशीन है वो हमारी फिजिकल मशीन का वो पार्ट यूज कर दिया ना, 8 GB रैम असाइन हो जाएगी उस मशीन को। Now, so Excuse me, I have one question here. What is how it is related to hot standby and fault tolerance? hot standby, fault Yeah. tolerance is actually hot standby. It is active. But that is failover. High availability. Yes, HA is failover. Yes. No, I'm asking
how hot standby and FT, Is different, right? yeah, no, how they're related, not different. Actually, failover is for high availability, right? Failover And is for hierarchies. load balance, DRS is for load balancing, right? And the fault tolerance means here. Fault tolerance is super HA, super high availability. That means in HA, you will be having a little downtime because your virtual machine will be migrated from this very hardware to any other hardware if the hardware will fail, right? Okay. But in case of FT, if this machine will fail, there is a machine which is there in standby. You'll not be having any downtime, right? Okay, no problem. Okay, thanks. It's clear. You can see clearly that in virtual data centers, we were doing effective utilization of resources, but from last few years, यहाँ पे भी हमें कुछ challenges आने लग गए. उनमें से एक challenge ये है कि आज के time में जो आपकी applications हैं, वो अब एक single region में deploy नहीं होती. They will get deployed into multiple regions or multiple data centers around the globe, right? That is the first thing. So I'm taking example of ICICI Bank. Now 10 years back, ICICI Bank was actually having only few applications which are running. They were having only few applications which were running, right? And they were running into their Mumbai data center only. But if you will see now, after 10 years from then, they are running 50 plus applications, but these applications are running into their 7 different data centers across India. Why? Because वो नहीं चाहते कि उनके customers को latency हो. दिल्ली का customer दिल्ली के data center service access कर लेगा, मुंबई का customer मुंबई के data center service access कर लेगा, right? They want failover. दिल्ली का data center down हो जाता है, तो maybe मुंबई के data center से request fulfill हो जाएगी, right? Now, that is the first challenge, that the applications are getting deployed into multiple data centers. And the second challenge is the changes to these applications are happening very, very frequently. यानी अगर आप हर दूसरे दिन किसी भी पोर्टल पे जाते हैं तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ चेंज हो गया. यानी आपको ऑलमोस्ट हर सेकंड थर्ड डे कोई ना कोई चेंज करना पड़ रहा है. तो अगर आपको 7 डेटा सेंटर्स में साइमल्टेनियस चेंजेस करने हैं तो या तो आपको 7 अलग अलग टीम्स की जरूरत पड़ेगी, or what you can do is you can integrate all of these data centers which are running in the backend. So backend में हमेशा virtual data centers ही हैं हमारे पास, but what we have started doing is we have started integrating these virtual data centers with a web interface using REST APIs. REST is known as representational state transfer. API is known as application program interface, and this platform is known as cloud platform. That means by sitting at this platform, you can manage hundreds of data centers which are there around the world. 100 से भी ज़्यादा data centers को आप एक साथ manage कर सकते हैं, maintain कर सकते हैं, changes कर सकते हैं, deployment कर सकते हैं. Everything can be done by sitting on a single web interface. I will show you this. Now, if I'm going to AWS Management Console, you can see that by sitting here, I can manage my applications everywhere around the world, whether it is Virginia, Ohio, North California, Oregon, Cape Town, everywhere around the world. That means by sitting at this location, I can make changes to my 76 data centers, which Amazon is having. So in the backend, virtual data centers are running, जो अभी हमने बात की, but they are being managed by sitting at this interface, which is an interface which we are managing using REST APIs. REST is known as representational state transfer, right? And this is the cloud interface. अब बात करते हैं, is it clear to everyone? Okay. Now, so what is cloud computing? What is cloud computing? So using resources which are available over the internet. उन resources को use करना जो कि internet पे available है. मैंने क्या किया? I've typed a link, username and the password. I came to the web interface and using resources which are available on the internet for computation, data storage, data processing is known as cloud computing.
इस इंटरफेस पे बैठ के आप सर्वर्स बना सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं, एवरीथिंग which was possible in the on-premises data center that can be done here, maybe more, right? So cloud computing's simplest definition is using resources which are available on the network or on the internet for computation, data storage, and data processing is known as cloud computing. Now, so cloud concept started way back in the year 2004-5. That means एग्जाम्पल लेते हैं Amazon का ही. In the year 2006, some of the engineers who were working with Amazon, they have suggested the management that the excess capacity of resources which we are having, we should have to start selling this capacity. तो जब मैं क्लाउड में कैपेसिटी बोल रहा हूं, that means CPU and RAM. स्टोरेज हमेशा ऑन डिमांड होती है. तो उन्होंने अपनी मैनेजमेंट को सजेस्ट किया इन द ईयर 2006 कि जो एक्सेस कैपेसिटी हमारे पास सीपीयू और रैम है उसको हमें सेल करना स्टार्ट करना चाहिए. और Amazon started selling it in a PaaS model, platform as a service, right? अभी हम बात करेंगे PaaS, SaaS and IaaS. तो उन्होंने उसको सेल करना स्टार्ट किया एंड इन द ईयर 2007 2 लाख के अराउंड कस्टमर्स, 100,000 customers were using their platform. जब इतने कस्टमर्स उनका यूज कर रहे थे प्लेटफॉर्म, तो दे वर हैप्पी विद द रिस्पांस एंड दे हैव स्टार्टेड लॉन्चिंग मोर सर्विसेज, राइट? सो वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड. सबसे पहला जो है वो है हमारे पास प्राइवेट क्लाउड. नाउ प्राइवेट क्लाउड इज ऑलवेज सिंगल टेनेंट. प्राइवेट क्लाउड इज ऑलवेज single tenant. Now what do you mean by this is, this means that you are going to get a fixed capacity for the fixed time period. यानी आप मान लीजिए ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर में 500 सर्वर्स चला रहे थे, अब आप ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर बंद करना चाहते हैं, आप किसी प्राइवेट क्लाउड की सर्विस लेना चाहते हैं, तो वो आपको 500 सर्वर्स वहां पे दे देंगे. अंडरलाइंग हार्डवेयर मैनेज करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एप्लीकेशन मैनेज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो प्राइवेट डेटा सेंटर है, दे आर ऑलवेज single tenant. Single tenant means a single organization will be using this cloud. इसका जो बेस्ट एग्जांपल अब आप देख सकते हैं IBM का सॉफ्टवेयर है. अगर मैं IBM के पास जाता हूं और मैं IBM को बोलता हूं कि मुझे 100 सर्वर्स चाहिए for 6 months, they're not going to give me. वो बोलेंगे कि हम तो आपको मिनिमम 500 सर्वर्स दे सकते हैं and that too we can give you 500 servers and that too with a commitment of 1 year. हम आपको 500 सर्वर्स दे सकते हैं जब आप 1 साल का कमिटमेंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी, राइट? सो अगर 5 साल का कमिटमेंट अगर मैं 500 सर्वर्स ले लिए मैंने और 1 ईयर का कमिटमेंट कर भी दिया, 500 सर्वर मैंने ले लिए और मैंने यहाँ पे 1 साल का कमिटमेंट कर भी दिया. अब मान लीजिए मुझे फिर से 500 सर्वर्स की जरूरत पड़ गई 20 दिन बाद. सो आई नीड टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट अगेन, और पहले सारा 1 साल का पैसा मुझे अपफ्रंट देना पड़ेगा. तो प्राइवेट क्लाउड में जो चैलेंज था हमारे पास वो था नो एजिलिटी एंड नो इलास्टिसिटी. So challenge with the private cloud was no agility, no elasticity. ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको हर जगह पे यूज होंगी. No agility means ease of doing things, how easily you can get it. तो हमें तो इजीली नहीं मिला, मुझे 500 सर्वर चाहिए थे, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, फिर मुझे 1 महीने का टाइम लगा, नहीं मिला. नो इलास्टिसिटी, यानी अगर मैं यहाँ पे 500 की जगह 5000 के लिए बोलता तो हो सकता है मुझे और 4 महीने लग जाते, 2 महीने लग जाते, राइट? So challenge with the private cloud was that we were not having any agility, we were not having elasticity. So ये challenge था हमारे पास private cloud में, इसीलिए every company have started moving towards the public cloud, right? That is the type of cloud. Private cloud is the type of cloud, yes. Now, next we are talking about is public cloud.
अब बात करते हैं पब्लिक क्लाउड की। The first one, it is a single tenant means सिंगल किराएदार, ये बिल्डिंग है पूरी, हाँ, इसके अंदर अगर एक ही आदमी ने पूरी बिल्डिंग particular रेंट ली हुई है तो particular सिंगल टेनेंट हो गया, tenant. लेकिन अगर इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं तो मल्टी टेनेंट हो गया, राइट। तो जो पब्लिक क्लाउड है इट इज ऑलवेज मल्टी टेनेंट, मल्टी टेनेंट। मल्टी टेनेंट मींस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस कैन यूज दिस क्लाउड फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। मान लीजिए मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर चला रही है, मेरे पास सर्वर्स की कमी पड़ रही है, तो मैंने क्या किया, पब्लिक क्लाउड में से 500 सर्वर्स ले लिए। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मान लीजिए दे आर रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज, उनकी स्टोरेज खत्म हो गई, तो वो नई स्टोरेज परचेज नहीं करना चाहते, उनको तो पता है कि अभी नहीं तो और 6 महीने में क्लाउड में माइग्रेट करना ही है, तो दे हैव स्टार्टेड यूजिंग द स्टोरेज फ्रॉम द क्लाउड। लेट्स सपोज आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कोई डेटा प्रोसेसिंग करनी है, डेटा प्रोसेस करने के लिए तो अलग से सेटअप लगाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो नहीं बनाना चाहते तो उन्होंने डेटा प्रोसेस क्लाउड में करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो पब्लिक क्लाउड में आपको ये सब एजिलिटी और इलास्टिसिटी दोनों ही मिलेंगे, लेकिन ये आपको अलग अलग मॉडल्स में अवेलेबल हैं। तो द फर्स्ट मॉडल इज SaaS मॉडल, फर्स्ट मॉडल इज नोन एज SaaS। SaaS is known as Software as a Service, यानी आप किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को क्लाउड में यूज कर सकते हैं एज ए सर्विस। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ऑफिस 365। पहले जो ऑफिस सॉफ्टवेयर था उसको आपको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ता था, आपके पास डिपेंडेंसी थी कि उसी लैपटॉप से एक्सेस होगा, डेटा भी उसी लैपटॉप में है, आपको इंडिया से बाहर जाना है तो वही लैपटॉप लेके जाना है क्योंकि आपका डेटा यहाँ पे है। लेकिन अभी ऑफिस 365 में आपके पास ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, यू विल गो टू द ब्राउजर, टाइप ए लिंक, यूजर नेम एंड द पासवर्ड, आप वो सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स क्लाउड में यूज कर सकते हैं, आपको सिर्फ उसका 1 साल का लाइसेंस लेना है, राइट। ना कोई डिपेंडेंसी है डिवाइस की, ना कंट्री की, ना इंटरनेट की, ना ब्रॉडबैंड की, कोई भी नहीं, राइट। So the Office 365 is the best example of software as a service. इसी तरह से Dropbox, Zoho, बहुत सारी कंपनीज हैं जो SaaS मॉडल में अभी आ गई हैं, राइट। आप अपना सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के फीचर से लेना देना है, वो कहाँ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड मॉडल इज PaaS मॉडल। PaaS is known as platform as a service. PaaS is known as platform as a service. Let's suppose you are a website developer. मान लीजिए आप एक वेबसाइट डेवलपर हो और आपको वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, तो आपको क्या चाहिए, यू नीड अ प्लेटफॉर्म। दिस प्लेटफॉर्म कुड बी जावा, PHP, .NET, वर्डप्रेस। अब मान लीजिए आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है अपने ऑन प्रेमाइस से डेटा सेंटर में, तो सबसे पहले आप हार्डवेयर परचेज करके लेके आएंगे, हार्डवेयर के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको अपना .NET, PHP या जो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए पहले तो आपका पैसा खर्च होगा सर्वर खरीदने में, फिर आपका टाइम भी लगेगा, सो इट टुक लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म। लेकिन यही सब करने की बजाय आप डायरेक्टली वर्डप्रेस को एज ए प्लेटफॉर्म फ्रॉम द क्लाउड ले लेते, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए प्लेटफॉर्म ले लेते, तो कुछ सेकंड्स में ही आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता। मान लीजिए आपने 100 आवर्स में अपना वेबसाइट डेवलपमेंट फिनिश कर लिया और आपने इसके लिए 100 रुपीज क्लाउड को रेंटल दे भी दिया, सो दैट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द टाइम एंड मनी व्हिच यू विल स्पेंड इन प्रिपेयरिंग योर ओन प्लेटफॉर्म। ये तो उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, आपके 60-70 हजार रुपए तो लग ही गए अपना सर्वर बनाने में एंड ऑल, राइट। सो you can use it in a PaaS model. PaaS means the platform, right? And the third is known as IaaS. IaaS is known as infrastructure as a service. That means you can build your complete infrastructure in the cloud as a service. इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका, मान लीजिए आपकी कंपनी ने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बना ली है, दैट एप्लीकेशन इज लाइक फूड पैंडा, स्विगी, जोमैटो,
रेडबस, बायजूस, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है. एप्लीकेशन रेडी है, यू वांट टू डिप्लॉय इट, यू वांट टू लॉन्च इट, यू वांट टू गो टू द मार्केट, राइट? कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं. तो अगर आपको एप्लीकेशन लॉन्च करनी है तो उसके लिए आपको सर्वर्स चाहिए, आपको डेटाबेसेस चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. अब आप अपना ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर इसके लिए बनाना चाहते हो, तो ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर बनाने में आपको 3 महीने कम से कम लग सकते हैं. फिर आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, टेस्ट करेंगे, यू विल लॉन्च इट, दैट मींस यू विल गो टू द मार्केट. इसमें आपका टाइम भी लगा और बहुत सारा पैसा भी लगा. ये सब करने की बजाय अगर आप उसको क्लाउड में लॉन्च करते, within few hours you can create your complete infrastructure in the cloud without any upfront cost, without any upfront commitment. On premises में हार्डवेयर तो आपको कोई फ्री में देगा नहीं, you need to purchase the hardware. क्लाउड में आप जो भी बनाएंगे उसके लिए आपको कोई अपफ्रंट पैसा नहीं देना है, you will be paying based on the usage. अगर आप 10 GB स्टोरेज लेते हैं तो आप 10 GB का ही पैसा देंगे. आप 4 सर्वर लेते हैं तो 4 सर्वर का आवरली बेसिस पे ही पैसा देंगे. नो कमिटमेंट. ऑन प्रेमाइसिस में आपने खरीद लिया तो कमिटमेंट हो गया, आपको चलाना ही चलाना है. यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है 1 महीने बाद, तो आप सारा का सारा जो भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया आप उसको टर्मिनेट कर दीजिए, आपका 1 महीने का जो कॉस्ट है वही लगेगा, राइट? So in infrastructure as a service, you can create your complete infrastructure in the cloud. Infrastructure means for hosting an application, hosting a website, you need an infrastructure, right? Which includes servers, storages, databases, networking, security, everything. तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि PaaS और SaaS भी दे सकते हैं. अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस बना रहा हूं तो मैं उसमें से किसी को PaaS भी ऑफर कर सकता हूं और मैं उसमें से किसी को SaaS भी ऑफर कर सकता हूं, राइट? So what is AWS? So AWS is the best infrastructure as a service public cloud. So if anyone will ask you what is AWS, so it is infrastructure as a service public cloud. तो ये infrastructure as a service public cloud है. तो हमारे पास AWS है, हमारे पास Azure भी है, हमारे पास Google Cloud है, हमारे पास Oracle है, Alibaba है, हमारे पास Rackspace है. There are so many companies which are there into the public cloud space. But Amazon is right now having 40% of the market share. Azure is having 22% of the market share. Google is having 12% of the market share. They're having 2-3% market share, right? Got the point? So we are learning AWS, which is infrastructure as a service public cloud, right? So बात करते हैं public cloud के कुछ features की. Public cloud is always cost effective. Cost effective किस लिए है? क्योंकि आपको upfront कोई पैसा नहीं देना है. Elasticity. तो सबसे पहले जब हम किसी भी ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर में जाते थे, कस्टमर से बात करते थे, तो कस्टमर बताता था कि भाई ये एप्लीकेशन लॉन्च करनी है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5000 यूजर्स मेरी एप्लीकेशन पे आएंगे या मेरी वेबसाइट पे आएंगे. तो उसके हिसाब से हम ये बताते थे कि भाई आपको 50 सर्वर इस कॉन्फ़िगरेशन के खरीदने हैं और आपको ये स्टोरेज और डेटाबेस लेना है. यानी हम करते थे, फर्स्ट थिंग इज दैट वी वर guessing about the capacity needs. The first thing you need to do in an on-premises data center is that you will guess about the capacity needs. कि कितने servers लगेंगे. But in the cloud, because we have elasticity, the first design principle is that stop guessing about the capacity needs. Capacity के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि everything is available on demand. That is what elasticity is. आपको 200 सर्वर चाहिए 200 मिलेंगे, 2000 चाहिए 2000 मिलेंगे, 5000 चाहिए 5000 मिलेंगे. Stop guessing about the capacity needs. Second is PPU, pay per usage. जो आपको पैसा देना है वो भी आपका यूसेज के बेसिस पे ही है. जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपको पैसा देना है. And the last is telemetry. Telemetry is monitoring the customer usage is known as telemetry. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरी कंपनी सिर्फ सर्वर्स यूज कर रही है, आपकी कंपनी स्टोरेज यूज कर रही है, इनकी कंपनी एक एप्लीकेशन यूज कर रही है, राइट? तो उस हिसाब से ही Amazon क्लाउड को, किसी भी पब्लिक क्लाउड को बिल जनरेट करना पड़ता है. तो बिल जनरेट करने के लिए कस्टमर के यूजेज की मॉनिटरिंग जरूरी है. उस टर्म को टेलीमेट्री बोला जाता है. If anyone is having any doubt, let me know. All okay?
Yeah. Yes, sir. Okay. So that was about basics of cloud computing. Now you know very clearly what you are going to learn. AWS is infrastructure as a service, public cloud, right? अब हम बात करेंगे डेटा सेंटर आर्किटेक्चर की, यानी आप जो अब काम करेंगे, यानी जो सर्वर्स बनाएंगे, डेटाबेसेस बनाएंगे, स्टोरेजेस क्रिएट करेंगे, वो कहां से आएगा, राइट? तो हमने बात की कि एक्चुअली में जो बैकएंड है, बैकएंड में ये जो इंटरफेस आप अपने सामने देख रहे हैं, ये जो इंटरफेस आप ये देख रहे हैं, ये AWS मैनेजमेंट कंसोल हम इसको बोलते हैं। इस मैनेजमेंट कंसोल पे बैठ के आप कंप्यूट यानी सर्वर्स बना सकते हैं, स्टोरेजेस। तो ये कहां से बैकएंड में आपको मिलेंगे? दैट इज नोन एज डेटा सेंटर आर्किटेक्चर। तो डेटा सेंटर आर्किटेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डेटा सेंटर आर्किटेक्चर क्लियर है तो आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि जो आप वर्चुअल मशीन बना रहे हैं वो कहाँ पे बन रही है, उसके साथ जो स्टोरेज आप अटैच कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, राइट? ऑल दीज थिंग्स। नाउ तो किसी भी डेटा सेंटर में जो पहली चीज है वो है आपका फिजिकल हार्डवेयर। डेटा सेंटर में सबसे पहले जो आपके पास है वो है फिजिकल हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर आप डाल रहे हैं हाइपरवाइजर और उसके ऊपर आपने बनाई वर्चुअल मशीन्स। मान लीजिए आपने यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन बनाई वो 20 वर्चुअल मशीन्स बना दी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई कितनी वर्चुअल मशीन्स बन सकती हैं? ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं हार्डवेयर के अंदर, कितने रिसोर्सेज हार्डवेयर में, इस पे डिपेंड करता है कितनी वर्चुअल मशीन बन सकती हैं। तो एक सिंगल हार्डवेयर के अंदर 128 सीपीयूज हो सकते हैं, वर्चुअल सीपीयूज 128। तो 128 वर्चुअल मशीन तो बन ही सकती हैं, राइट? नाउ तो हार्डवेयर, हाइपरवाइजर एंड दीज वर्चुअल मशीन्स। तो हर हार्डवेयर के साथ एक स्टोरेज अटैच्ड होती है। हर हार्डवेयर के साथ एक स्टोरेज हमेशा आती है। दैट स्टोरेज इज नोन एज डैश। डैश इज नोन एज डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज। किसी भी डेटा सेंटर में जब आपने काम किया है या आपको मालूम है, तो डेटा सेंटर में जब हार्डवेयर लेके आते हैं उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा स्टोरेज नहीं रहती, राइट? तो हमारे भी डैश के अंदर मान लीजिए 2 TB की स्टोरेज है, लेट्स सपोज। बट मेरी जो एक वर्चुअल मशीन है, इस वर्चुअल मशीन को जरूरत है, लेट्स सपोज माय वन वर्चुअल मशीन नीड्स 10 TB स्टोरेज। मेरी एक ही वर्चुअल मशीन को 10 TB स्टोरेज की जरूरत है, लेकिन मेरे पास तो टोटल हार्डवेयर के अंदर 2 TB ही है। डैश इज डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज। मेरे को तो 10 TB की जरूरत है सिर्फ एक वर्चुअल मशीन को, और इसके अंदर सिर्फ 2 TB है। तो वी विल नॉट बी यूजिंग डैश इन डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स में हम डैश यूज नहीं करेंगे। वी विल नॉट बी यूजिंग डैश इन डेटा सेंटर्स बिकॉज इट इज नॉट ए स्केलेबल स्टोरेज, राइट? सो ये जो है ये स्केलेबल स्टोरेज नहीं है, राइट? सो डैश जो है वो स्केलेबल स्टोरेज नहीं है। इसकी जगह हम जो स्टोरेज यूज करेंगे दैट इज नोन एज SAN storage. SAN is known as storage area network. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग से एक स्टोरेज होती है, SAN स्टोरेज। उसको मैनेज करने के लिए अलग से एक टीम होती है जिसको हम स्टोरेज टीम बोलते हैं। सो SAN इज ए वेरी वेरी कॉस्टली स्टोरेज। SAN स्टोरेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास SSD। SSD is known as solid state drive. It is the costliest and the fastest drive which is available these days. ये सबसे कॉस्टली और सबसे फास्टेस्ट ड्राइव है जो आज के टाइम में अवेलेबल है, राइट? आप जो लैपटॉप मार्केट से खरीदते हैं, इफ इट इज अ कॉस्टली लैपटॉप, तो उसके अंदर SSD होती है, फास्ट भी बहुत चलता है, राइट? सेकंड type of storage is known as HDD storage. HDD is known as hard disk drive. HDD is known as hard disk drive. तो HDD is a cheaper storage in comparison to SSD. HDD जो है वो cheaper है SSD के comparison में। कितनी cheaper है? 10 times cheaper है।
तो अगर SSD आपको 30,000 की है तो ये 3,000 की आपको मिल रही है 1 TB, राइट। लेकिन HDD चीपर स्टोरेज है। और फिर आपको क्लाउड में, Amazon क्लाउड में स्पेशली एक और स्टोरेज मिलेगी विच इज मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक जो स्टोरेज है वो कोई और क्लाउड यूज करता नहीं, पुरानी टेक्नोलॉजी है, बट Amazon इसको आपको देता है टेस्टिंग वर्कलोड के लिए। यानी अगर आप अपनी एप्लीकेशन, डेटाबेस या कोई भी चीज टेस्ट करना चाहते हैं क्लाउड में, तो आप मैग्नेटिक स्टोरेज यूज कर सकते हैं। इट इज अ चीपर स्टोरेज। तो ये ओनली फॉर टेस्टिंग। मैग्नेटिक कौन प्रोडक्शन में यूज करेगा? इट इज नॉट, इट इज वेरी वेरी स्लो स्टोरेज। कोई थ्रूपुट नहीं, कोई आईओप्स नहीं, कुछ नहीं मिलता इसमें आपको। नाउ अब पॉइंट ये है कि आप इस हार्डवेयर को स्टोरेज से कैसे अटैच करेंगे। तो जो आपके पास हार्डवेयर है, हार्डवेयर के पास होते हैं निक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हार्डवेयर के पास तो निक होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए निक? राम, निक की कितनी स्पीड होती है? नहीं पता सर। ओके, निक की स्पीड कितनी होती है? 1 GB per second around. 1 GB। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखिए, आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इन नेटवर्किंग, स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन नेटवर्किंग। ये आपने सबने बीटेक में, BCA जो भी पढ़ा है उसमें पढ़ा है आपने। अगर मेरे पास 8 बिट्स हैं तो इट इज इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट बन के 1 बाइट बनती है। अगर मैं बोलता हूं 1 किलो इन नेटवर्किंग, तो 1 किलो इज इक्वल टू 1024। 1 किलो इज इक्वल टू 1024, राइट। तो अगर मुझे नेटवर्क स्पीड कैलकुलेट करनी है, अगर मुझे नेटवर्क स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो नेटवर्क स्पीड कैलकुलेट होती है बिट्स में। आप कई बार देखते हैं speedtest.net पे आप जाते हैं, वो कभी वो MBPS में आपको दिखाता है, आप सोचते हो कि MB डाउनलोड कर लेगा, वो आपको बिट में दिखाता है स्पीड, बाइट में नहीं दिखाता। तो इसलिए उसमें डिफरेंस होता है। अब आपको क्लियर हो जाएगा वो। तो अगर आपके पास 1024 बिट्स हैं तो इट इज गोइंग टू बी 1 किलो बिट। स्मॉल बी यूज होगा बिट के लिए, पर सेकेंड। 1 kilobit per second. If you are having 1024 kilobit, it is going to be 1 megabit per second. तो आपके घर पे जो इंटरनेट की स्पीड आती है वो 10 Mbps, 20 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps, 300 भी आती है अभी, बहुत सारी कंपनीज कमिट करती हैं। अगर आपके पास है 1024 megabit, so it is going to be 1 gigabit per second. 1 gigabit पर सेकेंड, राइट। तो ये आपकी स्पीड होती है किसी भी लैन कार्ड की बाय डिफॉल्ट। जो मेरे लैपटॉप में लैन कार्ड लगा है, किसी भी डेस्कटॉप में लगा, उसकी स्पीड 1 Gbps है। बट किसी भी डेटा सेंटर में, जब आप बात करते हैं डेटा सेंटर की, तो डेटा सेंटर के अंदर जो निक होता है उसकी स्पीड 5 Gbps हो सकती है। यानी अगर आप जाके amazon.com पे जाके मदरबोर्ड ढूंढेंगे जिसके अंदर 5 Gbps की स्पीड आपको मिल जाएगा। They are available these days. फिर अगर आप 10 Gbps, तो निक की जो मैक्सिमम स्पीड है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लैन कार्ड की, वो 10 Gbps हो सकती है मैक्सिमम। बट इन द क्लाउड, because we are talking about an infrastructure which will run at a very very high speed, तो ये स्पीड भी हम यूज नहीं करेंगे, निक यूज नहीं होते। वहां पे आपके पास फाइबर चैनल यूज होगा, स्पीड हो सकती है 25 Gbps, स्पीड हो सकती है 40 Gbps, 80 Gbps और 100 Gbps। 100 Gbps तक की स्पीड के साथ आपको ये हार्डवेयर क्लाउड में मिल सकते हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि किस स्पीड से वो कम्युनिकेट करेंगे स्टोरेज से, राइट। तो उसके लिए जो आपके हार्डवेयर में अडेप्टर होता है उसको बोलते हैं HBA अडेप्टर। HBA इज नोन एज होस्ट बस अडेप्टर। HBA अडेप्टर से एक फाइबर चैनल जाती है आपके फाइबर चैनल स्विच तक। तो पहले डेटा सेंटर्स में निक यूज होते थे। तो जब निक यूज होते थे तो हमारे पास जो
स्विचेस थे वो होते थे FCOE। FC होता था फाइबर चैनल ओवर इथरनेट, यानी जो फिजिकल स्विच है उसके अंदर कुछ पोर्ट्स होते थे लैन पोर्ट्स और कुछ पोर्ट होते थे फाइबर चैनल पोर्ट्स, राइट। बट अभी आपको सारे के सारे फाइबर चैनल स्विचेस ही मिलेंगे, राइट। फाइबर चैनल स्विच तक और वहां से आपकी जो वायर है वो जा रही है स्टोरेज कंट्रोलर तक। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी कॉस्टिंग है, इसकी एडिशनल कॉस्टिंग है, इट इज अ वेरी वेरी हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर। और तभी आपकी जो वर्चुअल मशीन है उनको हाई स्पीड पे स्टोरेज मिल रही है। तो इसको बोला जाता है यहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस। यानी आपको जब आप अपनी वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे Amazon क्लाउड में, तो आपको एक सिनेरियो में ये लिखा हो सकता है कि आपको हाई नेटवर्क परफॉर्मेंस के साथ, नेटवर्क परफॉर्मेंस में लिखी हो सकती है कि 100 Gbps की स्पीड से जो मशीन चल रही है वो आपको चूज करनी है, तो उसको बोला जाएगा नेटवर्क परफॉर्मेंस, राइट। The speed measured in bits and memory measured bytes. Memory. मेमोरी, हाँ वो भी बता रहे हैं, देखिए। सो देखिए, तो ये हमारी थी नेटवर्क स्पीड की बात। अब बात करते हैं स्टोरेज की। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज स्टोरेज। सो स्टोरेज जो है वो हमेशा कैलकुलेट होती है बाइट्स में। स्टोरेज विल बी कैलकुलेटेड इन बाइट्स। इफ आई एम हैविंग 1024 bytes, it is going to be 1 kilobyte. If you are having 1024 kilobyte, it is going to be 1 megabyte. 1 KB 2 KB की आपकी फाइल्स होती हैं MB में, जो आपके पास व्हाट्सएप पे वीडियोस आते हैं वो MBs में होते हैं, राइट। इफ यू आर हैविंग 1024 megabyte, it is going to be 1 gigabyte. कोई मूवी अगर आप डाउनलोड करते हैं तो GBs में होती है। If you are having 1024 gigabyte, it is going to be 1 terabyte. तो 1 TB 2 TB की हार्ड ड्राइव आपके लैपटॉप के साथ आती है जो आप परचेज करते हैं, राइट। नाउ then after terabyte we are having petabyte. then petabyte के बाद है 1024 terabyte is 1 petabyte. 1024 petabyte is 1 exabyte EB. तो EB जो स्टोरेज है वो आज के टाइम में यूज होती है, यूनिट्स इससे भी ऊपर हैं, राइट। यानी after petabyte you are having exabyte, exabyte you are having zettabyte, and then you are even having yottabytes, right. So these are not in use. We are having data which are there in the world, its maximum unit is exabyte. So in Amazon cloud we will be dealing with storages of exabyte. Exabyte storage से हम actually में deal करेंगे, right. So Hi, Jyoti here. I have just one point. yeah, Yeah, for last two, the pointers you said about we are not using these two. So are we saying they are just virtually available? We are not using them, or the units, right. yeah, Yes, the units are already there, but we are not having that much data. That is okay, what I mean. okay, based on it. Perfect. Thank you. Now, so you can see that the hardware will be stored to the storages in the backend, right? So it is a high-speed network. So SAN is a very, very costly storage. So Amazon Cloud is giving you these storages into different options. यानी आपको SSD और HDD में भी Amazon बहुत सारे अलग-अलग options देगा चूज करने के लिए। उससे पहले हम बात करते हैं स्टोरेज परफॉर्मेंस की। पहले हम बात करते हैं स्टोरेज परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय टू प्रॉपर्टीज। स्टोरेज की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज IOPS. IOPS is known as input output per second, right? That means how many reads and writes can be performed per second is known as IOPS. कितने read या write per second perform हो सकते हैं, इसको बोला जाता है IOPS. Now, so let's suppose your company is creating a server. What is a server? Server is a machine which will be answering to your queries.
तो अगर ज्यादा क्वेरीज आएंगी तो ज्यादा IOPS होगा। डेटाबेस के पास ज्यादा क्वेरी आएंगी तो ज्यादा IOPS की जरूरत पड़ेगी। एंड OLTP is known as online transaction processing applications। OLTP is known as online transaction processing applications। आज के टाइम में जितनी भी applications हैं, they are taking money online, you are purchasing products online, right? So they are OLTPs। So in case of servers, in case of databases, in case of online transaction processing applications, we need more IOPS। उसमें हमें ज्यादा IOPS की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको ज्यादा IOPS चाहिए तो आपको SSD चूज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जितनी भी ये वर्चुअल मशीन्स आप बनाएंगे, इनके साथ आप SSD अटैच करेंगे, राइट। Second property is known as throughput। Throughput means how much data can be sent from a given point per second। एक टनल में से कितना डेटा एक ही बारी में भेजा जा सकता है, that is known as throughput। How much data can be sent from a given point per second is known as throughput, right? तो अगर आपके पास कोई भी डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन है, या आपका कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो हमेशा थ्रूपुट की बात करता है, यानी इंटरनेट स्पीड की, राइट। तो in that case we will prefer using, in case of data analytics we will prefer using HDD, क्योंकि उस केस में आपको कस्टमाइज थ्रूपुट मिल जाएगा। थ्रूपुट मींस ज्यादा डेटा एक ही बारी में उस टनल के थ्रू फ्लो हो सकता है, राइट। तो अगर आपको IOPS चाहिए तो आप SSD लें, आपको थ्रूपुट चाहिए ज्यादा तो आप HDD लें। तो कोई भी हार्ड ड्राइव जो आप मार्केट से परचेज करते हैं, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ IOPS होता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ थ्रूपुट होता है, राइट। बट Amazon आपको ये सभी ऑप्शंस देता है इन ए मोर कस्टमाइज्ड वे, इससे भी ज्यादा कस्टमाइज करके आइए देखते हैं, राइट। ये दोनों क्लियर है प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ यू? Yes. Now what Amazon will offer you is, Amazon will offer you SSD and HDD in different ways। So first is, I'm typing here SSD। Under SSD we are having 4 options। First is known as GP2 SSD। GP2 means general purpose SSD। general purpose SSD, general purpose means by default you are going to get this। जो भी एक हार्ड ड्राइव में by default IOPS थ्रूपुट होता है वो आपको इसमें मिलेगा। by default किसी भी हार्ड ड्राइव में जो भी IOPS या थ्रूपुट होता है वो आपको GP2 में मिलेगा। so GP2 is the default volume type, right। second option is known as GP3। तो GP3 में क्या होगा, जनरल पर्पस 3 वर्जन 3। तो वर्जन 3 में आपको extended IOPS and throughput, that means you can customize, we can customized IOPS and throughput, यानी दोनों ही आप कस्टमाइज कर सकते हैं। IOPS भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं और आपको थ्रूपुट भी बढ़ा सकते हैं, अगर आपकी उस टाइप की रिक्वायरमेंट है आपकी एप्लीकेशन की तो। थर्ड इज नोन एज provisioned IOPS, provisioned IOPS SSD version 1। provisioned IOPS SSD version 1। अगर आप ये चूज करते हैं तो आपका स्टोरेज चाहे कितना भी हो, आप 1:10 की रेशो में IOPS ले सकते हैं। यानी अगर आपके पास 1 GB हार्ड ड्राइव है तो उसके साथ आपको 10 IOPS मिल जाएगा। You can customize IOPS according to your own requirement। आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो सिर्फ 100 GB है, लेकिन आप 10,000 IOPS चाहते हैं, यानी 1000 IOPS चाहते हैं, तो आपको 1000 मिल जाएंगे, right। Second, they have launched another version and which is known as provisioned IOPS SSD version 2।
तो वर्जन 2 में 1:50 IOPS आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी क्लाउड ये जो ऑप्शन है ऑफर ही नहीं करता। आपका IOPS तभी बढ़ता है जब आपका स्टोरेज साइज बढ़ता है, और यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी, बट आपको जो भी ऑप्शंस मिल रहे हैं यू कैन एक्चुअली customize it according to your application workload, right? These all functions in SSD. SSD. But you said that throughput is in HDD. SSD ही तो बात हो रही है, HDD की बात कर रहे हैं हम। हाँ, अब मैं पहले बता रहा ना कि HDD इसके बाद आएगा ना। There are two options, IOPS and throughput. The both Throughput options are यहाँ coming पे- in SSD and hard drive both. हाँ, but Some you cannot amount- customize Right. throughput है, यहाँ पे throughput customize नहीं हो सकता। Only IOPS. Only IOPS। throughput customize करना है तो सिर्फ आपको GP3 में ही आपको ऑप्शन मिल रहा है, right? Okay. Now, next we are talking about is HDD. Second option is HDD. Second is HDD. So in case of HDD, what we will be doing is we will be getting two options. One is known as cold HDD. Cold HDD means अगर आपके पास if you are having very large amount of data, तो आप उसको SSD में रखना पसंद नहीं करेंगे because it is going to cost you a lot of money, right? तो उसको आप cheaper storage में रख सकते हैं which is HDD. तो कोल्ड HDD इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि अगर वो डेटा आपको फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करना है तो आप इसके अंदर रख सकते हैं, राइट? सेकंड ऑप्शन इज थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड। थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड HDD. थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड HDD means you can manage your throughput. यानी आप एक 1 Gbps तक का थ्रूपुट यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, बट ये आप इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द अमाउंट ऑफ स्टोरेज। जैसे जैसे आप स्टोरेज बढ़ाओगे वैसे वैसे थ्रूपुट बढ़ेगा। आप IOPS की जगह IOPS की तरह इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। It depends on storage size of the storage, right? So maximum you can take it 1 Gbps. So ये अलग अलग टाइप के आपको स्टोरेज टाइप्स Amazon बैकएंड में प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा आप लेंगे ये टोटली आपके एप्लीकेशन वर्कलोड या एप्लीकेशन किस टाइप के इस पर डिपेंड करता है, राइट? two types, SSD and HDD. Now, so ये हमने बात की सैन स्टोरेज की। सैन कॉस्टली इसलिए है क्योंकि सैन के अंदर कॉस्टली स्टोरेज डिवाइसेस लगे हुए हैं, प्लस सैन के अंदर आपको पहुंचने के लिए यू आर हैविंग हाई स्पीड नेटवर्क टू रीच टू सैन, राइट? नेक्स्ट स्टोरेज इज नोन एज NAS. NAS is known as network attached storage. So ये स्टोरेज है आपके चीपर डिवाइसेस इसके अंदर लगे हैं like HDD. When you are having very large amount of data which is very less frequently accessed, उसको आप SAN स्टोरेज के अंदर डाल देंगे। तो क्यों कॉस्टली नहीं है? क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए सिर्फ आपको LAN कनेक्शन मिलेगा, कोई हाई स्पीड कनेक्शन नहीं है। LAN प्लस चीपर स्टोरेज डिवाइस है, its costing is going to be less than SAN, right? Now, next concept is now SAN and NAS, both of these are block storages. तो जो SAN और NAS हैं दोनों ही ब्लॉक स्टोरेजेस हैं। ब्लॉक स्टोरेज मतलब डेटा विल बी स्टोर्ड ब्लॉक बाय ब्लॉक। जब भी आप कोई पेन ड्राइव लेके आते हैं, कोई हार्ड ड्राइव आपको यूज करनी है तो आपको फॉर्मेट करना पड़ता है। फॉर्मेटिंग मींस पुटिंग ए फाइल सिस्टम ऑन टॉप ऑफ इट। तो फाइल सिस्टम क्या करता है? फाइल सिस्टम उसके ऊपर ब्लॉक्स डाल देता है इस तरह से। तो मान लीजिए मेरा ब्लॉक साइज है 1 KB और मेरे पास डेटा है 4 KB का, तो 4 ब्लॉक्स ब्लॉक हो जाएंगे। अब मुझे डेटा एक्सेस करना है जो कि ब्लॉक नंबर 2 में है, तो वही डेटा एक्सेस होगा जो ब्लॉक नंबर 2 में है। यानी ब्लॉक स्टोरेज हमेशा होती है फॉर
storing the structured data. Structured data का क्या मतलब है? या तो डेटा सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे कोई Amazon पे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो सिर्फ प्रोडक्ट का नाम ही तो चेंज होगा, कस्टमर का नाम ही तो चेंज होगा, वो फील्ड तो वही आएंगे 20 के 20, राइट? इसी तरह से साइज ऑफ द डेटा, साइज भी सेम आ रहा है तो वो हो गया स्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट? So SAN and NAS, both of these are block storages. Block storage is always for accessing the data faster. Fast data access के लिए हमेशा block storage use होती है. It is for structured data. तो Amazon में जो ये storage है जिसको हम बोल रहे हैं SAN, इसको बोला जाता है block storage. इसको बोलते हैं EBS. EBS is known as elastic block storage. It is known as SAN को बोला जाता है cloud में elastic block storage. इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज के अंदर आपको ये सारे जो ऑप्शंस है वो मिलते हैं, राइट? सेकंड इज नोन एज NAS. तो NAS जो है, NAS भी ब्लॉक स्टोरेज है, बट इसको हम बोलते हैं यहाँ पे फाइल स्टोरेज. तो देखिए वही टर्म्स आ गई जो ऑन प्रीमाइसेस में थी, फाइल स्टोरेज, शेयर्ड स्टोरेज, SAN, ब्लॉक स्टोरेज, राइट? बट देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज ऑब्जेक्ट स्टोरेज. तो हमारे पास यहाँ पे एक और स्टोरेज है व्हिच इज नोन एज ऑब्जेक्ट स्टोरेज. तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होती है? ऑब्जेक्ट स्टोरेज इज दैट व्हेन वी आर हैविंग वीडियोस, व्हेन वी आर हैविंग पिक्चर्स. तो जब हमारे पास वीडियोस हैं या हमारे पास पिक्चर्स हैं तो उस केस में हम, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. एक वीडियो का साइज 1 KB भी हो सकता है, वीडियो का साइज 5 TB भी हो सकता है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है. डेटा का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, राइट? तो उसको आप डालेंगे ऑब्जेक्ट स्टोरेज में. विल बी पुटिंग इट इनटू द ऑब्जेक्ट स्टोरेज, राइट? तो जो गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में हर जो वीडियो जो भी आप डालते हैं उसको एक HTTPS लिंक मिलता है. तो अभी भी जो मैं आपको ये क्लास के बाद जो लिंक भेजूंगा दैट इज आल्सो गोइंग टू बी HTTPS लिंक. यानी आप सबको वो डेटा अपने मोबाइल फोन्स में सेव करने की जरूरत नहीं है. That is stored at a central location. Using that HTTPS link, you will be accessing it. So object storage, everything will be based on a link, right? हर चीज जो है यहाँ पे वो लिंक पे ही based है. So it is for unstructured data. Now, what do you mean by unstructured data? Unstructured data is the data which is there into different formats. उनका size भी किसी का साइज 1 KB है, किसी का 5 TB है. तो YouTube पे जो वीडियोस हैं वो 1 मिनट का भी हो सकता है, वो 4 घंटे का भी हो सकता है, राइट? तो आप उसको कोई स्टोर तो करते नहीं, जो लिंक है एक जगह सेव्ड है, उसी से आप एक्सेस करते रहते हैं. इसी तरह से फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जहाँ पे भी आप जो लिंक को शेयर करते रहते हैं, राइट? दैट इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट स्टोरेज. तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज किसी भी डेटा सेंटर से अटैच नहीं होती. इट इज नॉट अटैच्ड टू अ डेटा सेंटर. इट इज एक्सेस्ड वाया इंटरनेट. So it is a global storage. ये डेटा सेंटर के साथ अटैच नहीं होती है. It is at a central location और जितना भी डेटा आप इसके अंदर डालते हैं उनको आप HTTPS लिंक से ही एक्सेस करते हैं. और ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए होता है जो कि डिफरेंट फॉर्मेट्स में है, राइट? So that was about data center architecture. तो Amazon क्लाउड में जो हम SAN यूज करेंगे इसको बोलेंगे EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज. इसको बोलेंगे EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम. और ये जो स्टोरेज है जो हमने बात किया ऑब्जेक्ट स्टोरेज, इसको बोलेंगे S3, सिंपल स्टोरेज सर्विस. और ये जो हम यहाँ पे बना रहे हैं ये एक्चुअली में आपकी वर्चुअल मशीन ही है, राइट? तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द, आज हम डेटा सेंटर आर्किटेक्चर तक ही पढ़ेंगे. तो कल की क्लास के लिए आपको एक काम करना है. यू नीड टू क्रिएट ए फ्री टियर अकाउंट. आप सबको एक फ्री टियर अकाउंट बनाना है. एंड दिस अकाउंट इज, यू नीड टू गो टू aws.amazon.com/free. You can create a free tier account which is free for 1 year. ये अकाउंट aws.amazon.com/free पे जाके बनाना है. ये अकाउंट आपके लिए 1 साल के लिए फ्री है. That does not means that everything is free. Some of the services are free for a limited time. उन सब का फ्री टियर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. अगर आप देखना चाहें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे ही
आप प्रैक्टिकल करेंगे, आप कंप्लेन करेंगे कि हमारा तो बिल आ रहा है। सो अगर आप प्रैक्टिस के बाद उन रिसोर्सेज को डिलीट कर देंगे तो कोई बिल नहीं आएगा। यू कैन सी यहाँ पे फ्री टियर अकाउंट आपका बन जाएगा, क्लिक ऑन क्रिएट फ्री टियर अकाउंट, और यहाँ पे हर सर्विस का फ्री टियर दिया हुआ है, कौन सी सर्विस कितने टाइम के लिए फ्री है, राइट। तो आप ये देख के यूज कर सकते हैं, या आप सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जो भी आप प्रैक्टिस करें वो आप प्रैक्टिस करने के बाद उसको डिलीट कर दें, टर्मिनेट कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका बिल जो है वो आएगा ही आएगा। सपोज मैंने कोई भी एक सर्विस को बिल्ड किया स्टार्ट करने के लिए और मैंने 1 घंटा यूज किया, देन 1 घंटे का बिल लगेगा। अगर मतलब इसमें फ्री टियर में है तो कोई बिल नहीं लगेगा, फ्री टियर में कोई बिल नहीं है इसका। नहीं, जैसे 750 आवर्स लिखा है इसमें। हाँ तो 1 घंटा यूज होगा ना इसमें से बस। जितनी देर मैं यूज कर रहा हूँ, अब उसके बाद मैंने सर्विस को मतलब अपने ब्राउजर क्लोज कर दिया और मैं 4 घंटे या 10 घंटे बाद दोबारा उसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो जो टाइम आवर्स कैलकुलेट हुआ तो 1 आपने अगर बना के छोड़ दिया 10 घंटे तो 10 घंटे कैलकुलेट हुआ। अभी टर्मिनेट कर दोगे, बाद में बनाओगे तो फिर 1 घंटा यूज। जिस टाइम यूज कर रहा हूँ उसी टाइम यूज करके टर्मिनेट। करेक्ट, राइट। Okay, I have one point. Like there are multiple services available, as you showed on the screen. So every time whenever we are visiting, does it take time to create? I mean, use that space. Like he said, he has been using it for 10 hours. He has logged in after 10 hours, so it was being charged. So if I'll log in every time, if I want to use that service, every time if I'll create, does it take time, or this is the best practice? It will be created within few seconds. Creating seconds. all the services will not take more than seconds, right? All right, perfect then. Whatever you will create in the cloud, it will not take much time. So that is why the best practice is, because you do not want to pay for practicing in the Amazon cloud, and Amazon is giving you this free tier, but there is a limitation. Let's suppose you have created a server and you have left it in the account. In that case, you're going to get a bill, right? So if you will get a bill, let me know. You can send an email to Amazon and they will actually remove those charges, but it's not necessary, or it is not, I don't know that they will remove it or not, but in some of the cases they are actually removing these charges, right?